Okay, hi all. This is a very important video because here in this video we'll be doing question number 3, rest of the parts, that is E, F, G and H. But what is different between the second video and the third video? In second video na we used to use the sum formula, the first one, that is this particular one. That was n by 2, 2a plus n minus 1d, right? But in this one we will use another one, which is n by 2 a plus l. A plus l means a is the first term, l is the second term. So why we are using it? Because हमारी जो जितने भी a b c d parts थे, in that we were given n, 16 terms, 10 terms and so on, right? N was already given. But in EFGH, we have not been given n, we have been given the last term. If you see 101 is given, right? This is the last term. By this we mean this is the last term, this is the last term, this is also the last term and this is also the last term. So you need to keep this in mind कि हमें कब कौन सा formula use करना है. So if we see the E part, it says 5, 9, 13, 101. So A is 5, D is second term minus first term, which is 9 minus 5, which is 4. And L is 101. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चंस में होती है जब भी वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ होता है कि हमें पहले n निकालना पड़ता है. n कैसे निकालोगे? n आप निकालोगे जनरल फॉर्मूला से. सो जस्ट be mindful that whenever you have to calculate the sum using the last term wala formula, so you need to calculate the general formula से n. Okay, so let's see. अब a n and a plus n minus 1d आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो मुझे नहीं पता वो लास्ट टर्म कब आ रहा है. सो आई विल राइट n निकालूंगी. a is 5, n we don't know and difference we know is 4, but I know the last term, तो an की जगह last term को हम equate कर देंगे. It is 101. तो what I did is an को मैंने equate कर दिया with the term जो मुझे चाहिए, which is last term. So 101. 101 is equals to 5 plus 4 times n, 4n minus 4 times 1, which is 4. So 5 minus 4 is 1. 4n plus 1 is equals to 101. 101 minus 1 is equals to 4n. 100 is equals to 4n. n is equals to 25. इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स दैट द लास्ट टर्म विच वॉज 101, सो इट कम्स एज द 25th टर्म. 25th term of the sequence is 101. अब आप कुछ भी कर सकते हो. You can just apply this formula sum, which is n by 2 a plus l में we have to use n as 25th term है, and a is how much? The first term is 5 and last term is 101. So you just add this 25 by 2 into 106. So आई कैन से कि जब भी मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, आई नीड टू कैलकुलेट n एंड देन आई नीड टू यूज़ द सम फॉर्मूला, क्योंकि उसके अलावा आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो. आपके पास सारी टर्म्स होनी चाहिए, n होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो. सो 225 into 106 and then divided by 2, it is coming out to be 1325. So that means we have the answer. Sum of the following series we have 1325. Let's see another one. So I can just write the steps for you, that whenever we have last term given, calculate, please write in concept notebook, calculate n using general formula, which is an is equals to a plus n minus 1d, और an की जगह you just put the last term. क्यों? हम कोई भी टर्म जब पुट करेंगे तो हमें वो बता देगा कि वो टर्म कब आ रही है. इससे हमारे पास n आ जाएगा. a और d है ही हमारे पास. एंड देन जस्ट पुट अप्लाई सम formula. Let's see the F part. This is very important. We have written the steps. F part is 83, 80, 77, so on and 5. So A is 83, first term. D, difference is second term minus first term. 80 minus 83 is minus 3. And L, last term is 5. Again, मुझे n नहीं पता है. I will find with general rule. an
ठीक है, a इज़ गिवन एज 83, n मुझे निकालना है, d इज़ -3, a n की जगह लास्ट टर्म इज़ 5, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 5 कब आ रहा है n की उससे. सो 5 इज इक्वल्स टू 83, -3 इंटू n इज़ -3n, -3 इंटू -1 इज़ +3, 83 + 3 इज़ 86, देन -3n तो मुझे नहीं चाहिए, तो -3n उधर जाके मैं +3n कर दूंगी, एंड नंबर्स को मैं इधर ले आऊँगी, 5 उधर ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो वी हैव n एज 27, राइट. अब मेरे पास n है, आई विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला which is 27/2. a is first term is 5, last term is, sorry, first term is 83, last term is 5. So 27/2 into 88 I will do. So 27 into 88 divided by 2, which is 1, 88 is the sum. G part let's do. -17, -12, -7, so on till 33. So a first term is -17. डिफरेंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, स्टूडेंट्स एरर करते हैं. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज़ -12, फिर सब्ट्रैक्ट खुद से पुट करो, फिर फर्स्ट टर्म. सो -12 + 17 विच इज़ 5, डिफरेंस इज़ 5, लास्ट टर्म इज़ 33. सो वी जस्ट राइट, पहले n निकालेंगे जनरल रूल से, ये खुद से निकालना ही पड़ेगा क्योंकि n नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हो फॉर्मूला. तो दिस एग्ज़ाम में कुछ लिखा नहीं आएगा हिंट एंड ऑल, ये हमेशा निकालना है. लास्ट टर्म इज़ 33, 33 की हेल्प से ही आई कैन आइडेंटिफाई कि ये कौन सा टर्म है 33. सो 33 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n 5n, 5 इंटू -1 5. सो -17 -5 इज़ -22, 33 22 उधर जाके ऐड हो जाएगा. सो वी हैव n इज इक्वल्स टू 11, मतलब जो ये लास्ट टर्म है इसमें टोटल टर्म्स 11 है. आई जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला n/2 a + l विच इज़ 11/2. a इज़ 17 -17, l इज़ लास्ट टर्म इज़ 33. सो हमारा 33 -17 कर लो, 16 आई थिंक, या. सो वी हैव 16 इंटू 11/2 विच इज़ 88. तो दैट मीन्स हमारे सम ऑफ 11 टर्म्स आ रहा है 88. ओके, देन एच पार्ट लेट्स सी. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज जिसमें आपको पहले n निकालना ही पड़ेगा. 1 1/4, 1 1/2, देन सो ऑन एंड 9 3/4. देखो फ्रैक्शन आ जाता है तो आपको बिल्कुल स्केयर नहीं हो जाना है. a फर्स्ट टर्म इज़ 1, देन लास्ट टर्म इज़ 9 3/4. डिफरेंस इज़ हाउ मच? डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो सेकेंड टर्म में 1 1/4 है, फर्स्ट टर्म में 1 है, तो 1 1/4 में से 1 हटाना है. सो 1/4 ही तो बचा, राइट. सो वी विल कैलकुलेट अगेन n फर्स्ट निकालना ही पड़ेगा तभी सम आएगा with the help of the general rule. So a is 1, difference is 1/4, last term is 9 3/4. So 9 3/4 is equals to 1/4 into n which is 1/4n, 1/4 into 1 which is 1/4. Then do one thing to make it easy ना, write in decimals ताकि आपको कोई इशू ना आए. देखो 3/4 को कैसे आप लिख सकते हो, 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दो कैलकुलेटर पे, इट इज़ 0.75. तो 0.75 एंड 9 भी है, राइट. 3/4 तो 0.75 है, बट 9 इज ऑल्सो देयर, सो इट इज़ बेसिकली 9.75. ओके, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/4 कर दो कैलकुलेटर पे, क्या होता है 1 डिवाइड बाय 4 इज 0.25. सो 0.25 n यू कैन राइट. Instead of 1/4 you can just write 0.25. okay, 0.25 n, and जो लास्ट में सिर्फ 1/4 है उसको हम सिर्फ 0.25 लिख देंगे.
Just a second. Wait. 0.25. Yeah. Now we have numbers to be solved. 1 minus 0.25 करो calculator पे, it is 0.75. एंड ये इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा. 9.75 माइनस 0.75 विच इज ओनली 9. सो अब 0.25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इट विल बी डिवाइडेड. सो वी हैव n एज 36. इसका थोड़ा टफ था क्योंकि थोड़ा फ्रैक्शन इन्वॉल्व था, तो मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट. इसको आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट में भी कर लेना. देन n वी हैव कैलकुलेटेड. अब तो सिंपल है, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. n इज 36, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 9/3/4. 9/3/4 इज 9.75. सो ये आ गया 18. 36 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया 10.75. यू जस्ट मल्टीप्लाई 10.75 इंटू 18. 10.75 इंटू 18 which is 193.5. So we have the answer 193.5 for the last part. Simple as that. So here always remember जब last term वाला formula apply होना है तो हमें n calculate करना है. We'll do the next question in the next video. See you.